Devendra, could you just have, if you can just give a small introduction of yourself, because from now we have started recording the session, and then we will share this with other members. Okay, fine. So, yeah, Devendra, take it over. Yeah, I'm Devin Mehta, done MSc from Vadodara, and then I worked as a researcher in multiple areas of India as well as Gujarat. Basically, I worked in avian biology and mammals. So I'm interested to understand their migration, their ecology, their behavior, and their conservation. So today we are discussing about birds and bird migration. And basically, what is a migration? If you want to understand a word migration, what do you think? Migration क्या है? Any kind of input? फूड के लिए मतलब क्या? Migration is a process where a bulk of birds or bulk of certain things, they change the place from one place to another in search of either food or nesting. Okay, fine. Almost quite near to the perfect answer. Yeah. So migration is a phenomena. So the migration, we can use this term for a movement of any living organism. It is not necessary. It is not necessary mass movement, because there are lots of raptors, they travel only singular. So they don't gather, they don't make a flock. वो एक ग्रुप में नहीं आता है. There are lots of raptors, albatross जैसे बर्ड है, और खास करके जो हेवी जो vultures है वो कैटल्स बनाता है. But at the same time, ospreys जो heavy bird है, they are not making any kind of group during migration. They are solitary. Yeah. So, and according to their own adjustments. Yeah. So actually, it is dependent on species to species. सब कोई migrate भी नहीं करता है. There are lots of local birds, they don't migrate. So migration एक ऐसी term है जो हम use कर सकते हैं एक behavior को लेके, कि क्या है कि कोई भी एक individual अपने survival के लिए, first of all that survival, तो survival के लिए in case उसके पास food भी है, फिर भी survival conditions नहीं है, competitions है, तो भी वो निकल सकता है वहां से. And migration is a phenomena of survival for food and mate. कि ब्रीडिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए वो सीजनल चेंजेस हो सकते हैं, तो अवेलेबिलिटी नहीं होती है रिसोर्सेज की, तो हाँ, फूड, रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल और कंपटीशन और एनी अदर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं उसमें, जो फोर्स माइग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं. जो नेचुरल माइग्रेशन नहीं है, जो फोर्स माइग्रेशन है कि आज हैबिटाट है या नेस्ट है, आपने वो निकाल दिया है, so they have to go somewhere else. Yeah, but it is not a typical kind of migration, it is a forced migration, so we cannot use that term as a natural phenomena. So this is how we can use this word migration, कि ये जो migration है वो birds ऐसे करता है. Birds को छोड़ के भी कोई कोई करता है. कौन? Almost हर एक. Fish, yeah. So whales, yeah, whales, sharks, even insects. आपको पता है इंसेक्ट सबसे ज्यादा wildebeest in Africa. So grassland based migration है जो कि रिसोर्स बेस्ड है, जहाँ पे ग्रासलैंड पे फूड नहीं मिलता है, बहुत बहुत कम होता है. हाँ, तो वो धीरे धीरे वो आपने वो नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा, विल्डेबीस्ट पानी में जाता है, मगरमच्छ खींच लेता है, तो इट इज काइंड ऑफ साइकिल. तो वो रिसोर्स के लिए वहां से माइग्रेट करते हैं. एलिफेंट का भी ऐसा ही होता है. एलिफेंट जो एक एरिया में रिसोर्सेज नहीं होते, फूड नहीं होता है, या पानी की अवेलेबिलिटी जैसे जैसे कम होती है, हर एक बड़ा मैमल है, जैसे जैसे पानी की स्कैरसिटी होती है, तो वो दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इट इज अ लोकल माइग्रेशन. टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है जो अभी माइग्रेशन क्या समझने के बाद हम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग टाइप के माइग्रेशन हो सकते हैं. तो एक है कि रिसोर्स की कोई कमी है, आसपास में ही कुछ दूसरा रिसोर्स है, चला गया नजदीक के एरिया में, इट इज अ लोकल माइग्रेशन. एक है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन. तो
उसका ओरिजिन ऐसा हुआ था कि जो आइस एज था वो टाइम पे कोई कोई जगह पे आइस जो कवर्ड एरिया था वहां पे वो इतना फेवरेबल कंडीशन था नहीं, और बीच बीच में कोई कोई पॉकेट्स थे जहाँ पे कोई भी एक एनिमल था, जैसे कि एज एन एग्जांपल एक पेरिग्रिन फाल्कन पे रिसर्च किया हुआ। तो वो क्या हुआ कि उसकी अलग अलग ग्रुप का जो डिवीजन था उसके बीच में एक बैरियर था आइस का, पूरा बहुत बड़ा एरिया एक आइस शीट के रूप में बीच में आवा हुआ था। पर जैसे जैसे आइस एज में आइस का लेवल चेंज हुआ तो धीरे 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 उसको दूसरे रिसोर्स वाली लैंड मिली, तो वो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। I remember when you say longitudinal हाँ migration, there was a migration route that was recently published for specific bird. If you see, it is literally straight line. Yes. It is. straight line. And From Africa- Turn. Yes. it was most traveling probably from you are talking about Arctic tern or something some similar. From Europe all the way to somewhere around South Africa, and it's pretty much a straight line. Which bird you are talking about? It's a raptor. I forgot. the- Harrier. Most probably harriers are doing this thing. Secretary birds are doing these things. Sorry, not secretary birds. They are land-based birds. No. Falcons. Lots of falcons are doing the same thing. Harriers doing the same thing. Maybe a falcon. I don't remember, but it was a raptor. यूरोपियन हेरियर्स आर यूजिंग द स्ट्रेट रूट। मार्श हेरियर भी है जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप के बीच में माइग्रेशन करते हैं। सेम वे आर्कटिक टर्न जो है वो नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन है, जो उनका ओवरऑल माइग्रेशन देखें हम तो वो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ है, तो वो लेटिट्यूडनल होगा। एक है सॉरी हाँ लॉन्जिट्यूडनल हुआ, एक है लेटिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल माइग्रेशन होता है, तो लेटिट्यूडनल कम होता है, लॉन्जिट्यूडनल ज्यादा होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर का जो क्लाइमेट का डिफरेंस है, वहां पे ठंड होती है तो नीचे थोड़ा वार्म होता है तो वो नीचे आ जाता है। जब नीचे जब उसका वार्म का कंडीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है समर का, तो वो फेवरेबल कंडीशंस वहां पे तब तक हो चुकी होती है वहां पे, तो वहां ब्रीडिंग के लिए चले जाते हैं। तो ये जो है वो एक है, एक लीप फ्रॉग माइग्रेशन पैटर्न है, तो बीच बीच में रुक रुक के फिर जंप करते हैं, फिर थोड़ा आगे जाके वो एरिया में रुकते हैं, फिर जंप करते हैं। एक ये भी पैटर्न है। हाँ, So that is lots of waders, lots of waders. European or Eurasian? Okay, fine. Same. Pretty much straight line. Straight line. What is this? Can you share onto my WhatsApp? So that we can just post that here. Group માં નાખી દો ને, હું અહીંયા open કરી દઉં. So That's a pretty good example. yeah, What would black got with? they do. It was recorded to fly longest flight. Yeah, more than 11,000 kilometers. Yeah, Alaska to New Zealand. Many of them, many waders and terns and seabirds are still out of our limelight. They do a tremendous migration, but still we don't know about them. Leapfrog migration. leapfrog is different than the stopover. Yeah, it is different. Right? It is. Because stopover and Stop- stopover? they don't stay for a long time. Yeah, Just take rest. and then proceed. Yeah, And leapfrog by that will mean they stay there. for a couple of days. Yeah, and then again stays there. Then again stays there. Yeah, Yes. So what is the direction of? it's not specific. It's habitat specific. 700 miles. Alaska to New Zealand. Godwit. Yeah. Even the, can you share that one as well? Yeah, okay, that. Oh, and there is this one also, which is very famous for migration. Spoonbill sandpiper. Yeah, it is. It is. Generally, they are coming in eastern part of Indo-Bangladesh mudflats. Look it up. Unfortunately, we are not having spoonbill sandpiper in Western India. वो ज्यादातर जो है वो ईस्टर्न बेल्ट में ही रहता है। इंडिया में बहुत रेयरली रिकॉर्डेड है, बहुत कम रिकॉर्डेड है। ज्यादातर जो है वो बांग्लादेश और सुंदरबन का जो मड फ्लैट है वहां पे वो उनका स्टॉप ओवर है, कुछ का विंटरिंग रेंज है, वो ईस्ट एशियन फ्लाईवेज में आता है। ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन जो फ्लाईवेज है, हम फ्लाईवेज का आगे देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या है, मतलब हमारे जैसे हाईवे है वैसे ही। तो दिस इज हाउ माइग्रेशन हैज डिफरेंट टाइप्स।
जो माइग्रेशन के रीजंस भी है, टाइप्स भी है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासिफिकेशन। एक है कि पार्शियल माइग्रेशन भी होता है, फुल माइग्रेशन भी होता है, और कोई कोई स्पीसीज में सिर्फ एडल्ट्स ही जाते हैं। जो फर्स्ट ईयर जुवेनाइल होते हैं वो ज्यादातर माइग्रेशन में इतना रिस्क नहीं लेते, तो वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि इतना लेट तक ये बर्ड क्या कर रहा है, तो मोस्टली उसका रीजन ये होता है कि या तो वो मैच्योर नहीं होता है, ज्यादातर फर्स्ट ईयर या जुवेनाइल होते हैं जो अभी फ्रेशली एडल्ट हुए होते हैं, तो वो ज्यादातर माइग्रेशन का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको वहां पे जाके ब्रीड नहीं करना है। उसकी जो ब्रीडिंग मेच्योरिटी है वो ही थोड़े टाइम के बाद आएगी, तो अभी जाके क्या करें। सो दे स्टे देयर, जो विंटरिंग रेंज है वहां पे काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। सो वो टेम्पररी उसका एस्केप जोन भी होता है। दे नो व्हाइल विंटरिंग सीजन, उनको पता रहता है कि दिस इज गुड एरिया फॉर सर्वाइवल, देन ओनली दे टेक रिस्क। अगर ऐसा है कि लाइफ थ्रेटनिंग है तो वो चले ही जाएंगे, इवन दो वो गर्म है तो भी फिर भी चले जाएंगे। दैट्स व्हाई माइग्रेशन इज नॉट फिक्स टाइम बाउंड। आपको कोई कोई माइग्रेटरी बर्ड लेट आया हुआ मिलेगा, कोई कोई जल्दी आया हुआ मिलेगा। दिस इज व्हाई दे हैव, ये जो ब्लैक-टिप्ड गोडविट बोले उसके ही ऊपर एक रिसर्च है कि उसमें एडल्ट्स, मेल, फीमेल और जुवेनाइल वो भी अलग अलग टाइम पे माइग्रेशन करता है। ऐसा जरूरी नहीं है, स्पीसीज टू स्पीसीज तो डिफरेंस होता ही है, पर उसमें भी मेल फीमेल है, और जो यंग है जिसको माइग्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई कोई ग्रुप ऐसे होते हैं, कोई कोई स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें वो एडल्ट का जो फ्लॉक होता है उसको फॉलो करते हैं। कोई ऐसे होता है जहाँ पे वो जुवेनाइल जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि उसको रिस्क ज्यादा लेना है, उसको रास्ते का भी पता नहीं है, तो जुवेनाइल ज्यादा निकल जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट डिफर्स। जो स्पीसीज आप जो बात कर रहे हैं जो गॉडविट में लागू पड़ता है, जो उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि कोई एक स्पीसीज का मॉडल दूसरे स्पीसीज पे 100% फिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं। इट इज डिफरेंट, रेप्टर्स में डिफरेंट है, वेडर्स में डिफरेंट है। देर आर लॉट्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेटिंग ड्यूरिंग डे टाइम, देर आर thousands of birds migrating during night time. तो वो स्पीसीज टू स्पीसीज उसने जो इवोल्यूशनरी ट्रेट जो सीखा हुआ है कुछ हजार सालों में, कुछ लाख साल में, कुछ है वो उसके हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन में मिला है उसको, कुछ कुछ है जो उसके लाइफ टाइम में उसने सीख सीख के पता लगाया है कि यहाँ पे माइग्रेशन करना ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो वो सब मैं आगे बताऊंगा। तो दिस इज हाउ इट इज अ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, फुल माइग्रेशन भी होता है, पार्शियल माइग्रेशन भी होता है। तो 100% माइग्रेशन जो स्पीसीज करती है वो उसके सब माइग्रेंट्स जो है वो एरिया छोड़ देते हैं, मतलब कि एडल्ट है, जुवेनाइल है, वो सब छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो 100% माइग्रेटरी हो गया। पार्शियल में क्या होता है कि कोई कोई कुछ टाइम के लिए माइग्रेट करता है, कुछ कुछ नहीं भी करता है। कोई स्पीसीज ऐसी है जो टेम्पररी माइग्रेट, तो लोकल जो माइग्रेटरी स्पीसीज है उसमें पार्शियल माइग्रेशन देखने मिलता है, कि जो बहुत लंबा माइग्रेट नहीं करती है। तो आप ककूस देख सकते हैं कि जो पार्शियल माइग्रेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन माइग्रेशन बोल सकते हैं उसको, कि जो है वो सदर्न इंडिया से, जैसे मानसून धीमे धीमे अभी आएगा केरल से, उसके साथ पाइड ककू आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, हाँ जेकोबियन ककू। तो पाइड क्रेस्टेड ककू नया नाम है, जेकोबियन पुराना नाम है। तो ये जो है बर्ड वो उसके एनवायरमेंटल ट्रेड्स फॉलो करता है, तो उसमें वेरिएशन भी होता है, डिपेंड्स ऑन मॉनसून क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे सब टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस भी होते हैं। अभी देखते हैं हम कि माइग्रेशन कहाँ से होता है, उसके कोई फिक्स रूट होता है क्या, क्यों होता है, any comments, why they have specific routes, if they have, if they don't then why don't। Some birds like the ones coming, they fly along with the winds, the trade winds. Okay, they know the monsoon winds के साथ आते हैं, and then when you have the retreating monsoon, when the winds are going back, when they fly back, That facilitates them to conserve the energy.
है काफी कुछ क्लियर है, काफी कुछ 2-3 चीज मिक्स हो चुकी है, ऐसा है। एग्री। अमूर फाल्कन का जो है वो मॉनसून के साथ लेना देना कम है। है खास करके जब वेदर खराब होता है तब उनका फोर्सली स्टॉप ओवर होता है अंडर सरकमस्टांसेस, कोई कोई होता है सर्टन सरकमस्टांसेस, तो उसको रुकना पड़ता है। लाइकवाइज 2018 में जो टर्बुलेंस हुआ था एयर में, थोड़ा बारिश हुई थी नागालैंड में, तो उसको 2-3 दिन रुकना पड़ा था कंपलसरी। सेम तमेंगलोंग में भी ऐसा ही हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में जो वेदर है हमारा, जो समर मॉनसून है, तो समर का जो शावर्स होते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो एकदम एंड पे आता है मॉनसून, समर मॉनसून का जो शावर होता है वो, तो कभी कभी इतना हैवी, थोड़ा 1-2 दिन के लिए रेन रहता है तो उसको रुक जाना पड़ता है। तो ये है, बट वो अलग है। तो अभी जाके हम देखते हैं कि व्हाट आर द फ्लाईवेज। सो आपको माइग्रेशन क्या है समझ में आ गया, क्यों करते हैं समझ में आ गया, और कौन कौन करता है। तो उसमें हम बर्ड्स की बात कर रहे थे, बाकी बहुत लंबे लंबे माइग्रेशंस मैमल्स भी करते हैं। और द मोस्ट अमेजिंग माइग्रेशन आई हैव गॉन थ्रू इज इंसेक्ट माइग्रेशन। इतनी सी छोटी तितली कुछ 1000 किलोमीटर उड़ती है, जो कि बड़े बड़े बर्ड्स उड़ते हैं उतना ही ट्रैवलिंग डिस्टेंस एक मोनाक बटरफ्लाई करके है। यूएसए, या सो नॉर्थ नॉर्थ जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएस है, फ्रॉम या so from there to Mexico, वो more than that miles, it's more than that miles। मुझे परफेक्टली उसका डिस्टेंस याद नहीं रहा है, बट वो जो है वो एक इंसेक्ट होने के बावजूद भी इतना लंबा माइग्रेशन कर सकता है। सो इट इज स्टिल मिस्ट्री कि इंसेक्ट की कोई कोई जनरेशन वाइज माइग्रेशन होता है। जो हम टिड्डे जो आते हैं ना, पिछली बार जो बहुत सारे टिड्डे आ गए थे, ग्रासहोपर्स, लोकस्ट एंड ग्रासहोपर्स, सो दे हैव जनरेशन वाइज माइग्रेशन। उसका ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन अफ्रीका में सेटल हो गई तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन वहां से भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो वहां से इंडिया साइड आ सकती है। तो दिस इज हाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइग्रेशंस। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लैंकटोन्स हैं जो हम देखते ही नहीं है। ज्यादातर प्लैंकटोन्स बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, जो हमें डायरिया भी करवा सकता है, जो फ्लोरोसेंस भी है, जो भी आल्गी है। तो हमें ये भी नहीं पता है मोस्टली, ये हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये पता चलता है कि ट्रीज आर इम्पोर्टेंट, बट हमें ये नहीं पता है कि एक इतना बड़ा ट्री जो है उतना ही ऑक्सीजन, एक इतना बड़ा सी ग्रास का जो बेड है सिर्फ 1/1 फीट का, वो इतना ऑक्सीजन आराम से दे सकता है। तो वर्ल्ड का पूरा ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% जो ऑक्सीजन हमें हवा में मिल रहा है वो तो समंदर से आ रहा है। ना कोई ट्री दे रहा है, ना कोई ग्रास दे रहा है। इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो मरीन बेस्ड जो आल्गी है, जो सी ग्रास है, उससे आता है। तो उनका भी कंटिन्यूअस माइग्रेशन चलता रहता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर करंट्स। जो माइग्रेशन अभी तक हमने देखा ही नहीं है, वो थोड़ा सैड है हमारे लिए कि बीइंग गुजराती वी हैव लॉन्गेस्ट सी कोस्ट, but we have very poor knowledge about our marine resources and marine life। वो जब कल ही हमारा डिस्कशन हुआ एक ग्रुप में कि ये डुगोंग का पहला साइटिंग था, दे आर ऑल्सो माइग्रेटरी स्पीसीज। तो हमें अभी तक नहीं पता इंडिया में क्या कर रही है वो, क्योंकि वी हैव अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ डुगोंग्स, बहुत कम बचे हैं। इफ इट इज अ शाई स्पीसीज, हमारा यूनिक एक हमारा जो जो पॉपुलेशन है वो यूनिक है। ऑस्ट्रेलिया में है वो अलग है, और मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज का है उसमें भी है, पर उसमें भी थोड़ा पॉपुलेशन डिफर कर रहा है। जैसे अपना जो वाटर नोज हमारा हाँ, वो दोनों अलग है। बोटल नोज भी अलग है और गेंजिस डॉल्फिन अलग है। ब्लाइंड होता है। वो गेंजिस डॉल्फिन है, वो फ्रेश वाटर है, बोटल नोज मरीन में मिलता है। तो ये जो है वो माइग्रेशन का ही एक एक्सटेंशन है कि भाई माइग्रेशन क्या होता है। मरीन में माइग्रेशन पूरा अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन वाटर करंट्स, वाटर टेम्परेचर, वाटर क्वालिटी, सेलिनिटी, ये सब जो है, जो हमारे हवा के बाहर निकलते ही दुनिया बदल जाती है, जैसे पानी में जाते ही दुनिया बदल जाती है। तो ये सब जो है, यस, हाँ,
हाँ, उसका भी एक माइग्रेशन है। मैं आपको एक रिसेंट पब्लिकेशन इसमें डाउनलोड करके बाद में दिखाऊंगा। व्हेल शार्क का माइग्रेशन टैग किया हुआ एक स्टडी है, और गल्फ ऑफ कच्छ में, और उनका नाम मैं भूल गया हूँ, इज फ्रॉम आई थिंक वहीं से उन्होंने स्टडी किया हुआ है। व्हेल शार्क का भी माइग्रेशन गुजरात में स्टडी हो रहा है अभी, डब्ल्यूटीआई ने किया हुआ है। और मैं उनका भी, उसका वो जो पूरा इमेज है वो आपको एंड में दिखाऊंगा सब। तो आप एक ये याद रखना मैं क्या क्या दिखाने वाला हूँ, अब ऐसा हो तो नोट कर लीजिएगा, वरना फिर ऐसा होगा कि दो तीन चीजें चली जाएंगी। या सो दिस इज अ माइग्रेशन एंड हु डू माइग्रेशन नाउ थ्रू flyways. They do migrate. What kind of organism use flyways? Birds. So it is insects also, but unfortunately we don't have any information of insect flyways. Birds हमारा काफी टाइम से वो हिस्टोरिकली हमारा इंटरेस्ट उसमें लगा हुआ था। अर्ली 1600 से हमको क्यूरियोसिटी थी कि ये बर्ड्स आते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं। पहले पहले कोई आइडिया नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन बर्ड माइग्रेशन की हिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छे से कंपाइल की नहीं है, अदरवाइज इट इज पॉसिबल कि हमको माइग्रेशन का आइडिया पहले से होना ही चाहिए। क्योंकि जो रैप्टर, जो फाल्कनरी है, उसमें क्या था कि मुगल किंग्स जो थे, और उसके पहले भी जो एरिया जो था वहां पे एक स्पॉट का एक एरिया था, जो बाज जो पेट एज अ पेट रखते थे, फाल्कनरी जो था। और उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेशियस एक बर्ड था, वो गौशॉक था। तो वो माइग्रेटरी स्पीसीज था हमारे यहाँ, नॉर्दर्न गौशॉक। तो वो जो था वो सबसे ज्यादा ट्रेन करने वाले प्रेफर करते थे। तो वो माइग्रेटरी बर्ड था। और हमारे यहाँ इवन प्रिंस ऑफ भावनगर धर्म कुमार सिंह जी वाज यूज्ड टू ट्रेन दैट बर्ड इन विंटरिंग सीजन ओनली। और वो जैसे ही ट्रेन होता था उसको छोड़ देते थे, और नेक्स्ट सीजन में वो इतना अच्छे से ट्रेन हुआ होता था कि वो फिर से आता था। सो अल्टीमेटली दे न्यू दोस थिंग्स। धर्म कुमार सिंह जी तो बहुत रिसेंट बात है, बट पहले भी ऐसा हुआ करता था। नॉट ओनली इन इंडिया, जो हमारा अभी तो पाकिस्तान का पूरा एरिया है, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहां तक जो हमारा सिविलाइजेशनल कंटिन्यूएशन है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये स्पोर्ट्स था वहां पे ये हो रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसके पहले की इंफॉर्मेशन है नहीं, इंडिया में माइग्रेशन का क्या हाल था। बट वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। तो 1800 तक एरिस्टोटल के और वो सब जो ऑब्जर्वेशंस थे उसको फॉलो किया गया। तो एरिस्टोटल ने पहले बोला था कि बांस फेलो करके एक चिड़िया है, तो वो पानी में चली जाती है, और पानी के नीचे जो नीचे मड रहता है तालाब के अंदर, उसमें वो हाइबरनेट करती है। सीजन जैसे ही खत्म होती है वो बाहर निकल के फिर आ जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन और मिथ और स्टोरी टेलिंग। So this is how Aristotle understood first कि उसको इनिशियल इंप्रेशन क्या मिला माइग्रेशन देख के। तो दिस इज हाउ ही टुक कि बर्ड माइग्रेशन ऐसा कुछ होगा। देन हाँ, it is now proven, it is now proven, it is now proven। तो ये जो है थोड़ी बार पहुंची। तो ये जो डिस्कशन है उसके ऊपर से कोई कोई लोगों को पता लगा कि एरिस्टोटल ने कुछ ऐसा काम किया है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में, काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये क्यूरियोसिटी जगी कि बर्ड्स जाते कहाँ हैं, एट द एंड वेयर आर दे गोइंग। आधा साल दिखते हैं, आधा साल नहीं दिखते हैं। तो फिर धीरे धीरे उनके जो बाद में कोई कोई रिसर्चर्स आए उसने ट्राई किया। तो एरिस्टोटल 100% गलत नहीं थे, उनको इतना पता था कि ये डिसअपियर होता है, उसको रीजन नहीं पता था कहाँ होते हैं। तो उसने ये सोच लिया कि so this is how he took, he assumed actually it was not। फिर उसका जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था एरिस्टोटल का, तो ये फाइनल था कि हाँ वो मोल्ड करते हैं। मतलब कि जो लोकल बर्ड्स हैं वो विंटर में कुछ अलग दिखते हैं, समर में कुछ अलग दिखते हैं। तो इट इज राइट, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन कुछ अलग रहता है, कुछ विंटरिंग अलग रहता है। तो दिस इज हाउ स्लोली कोई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, प्रिंसटन थी, हार्वर्ड थी, सॉरी हार्वर्ड का तो मुझे पक्का पता नहीं, बट स्मिथसोनियन का अभी जो वर्क चल रहा है, तो 300 साल से लेके अभी तक मिस्ट्रीज हम सोल्व बिट्स एंड पीसेस में करते रहते हैं, एक स्पीसीज की। तो उसमें एक एडिशन कब जाके पता चला कि बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, वो पक्का कैसे पता चला? एक व्हाइट स्टॉर्क था जर्मनी में। तो जर्मनी में एक व्हाइट स्टॉर्क करके, एक उसके गले में एक जो स्पीयर था वो लगा हुआ था, और अफ्रीकन स्पीयर का लकड़ी, और वो अफ्रीकन बनावट का था, और जर्मनी में मिला था। थैंकफुली बर्ड ट्रैवल कर रहा था तो कोई शिकारी ने मारा होगा, बट वो इतना फैटल नहीं था कि वो मरा, और जर्मनी पहुंच तो गया, ज्यादा लंबा टिका या नहीं उसका तो पता नहीं, बट फ्रॉम दैट दे डिसाइडेड कि ओके अच्छा ये बर्ड अफ्रीका से जाता है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन का पता तब 1800 के आसपास का जो टाइम था, तब जाके पक्का पता चला कि अरे अच्छा ये कुछ अफ्रीका से लेके आया है तो यहाँ जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ शुरू शुरू में पता चला कि ये कॉन्टिनेंट के बीच में कैसा माइग्रेशन होता है। फिर धीरे 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 उसमें एडवांसेस आए। काफी लोगों ने जो ऑडुबोन या ऑडुबन सोसाइटी जो है, उसके जो एक रिसर्चर थे, उन्होंने इनिशियली एक ईस्टर्न फीबी करके एक बर्ड आता है अमेरिका में, तो उसके पैर पे एक सिल्वर कलर का एक धागा उसने बांधा बच्चों के ऊपर, और फिर आया नहीं आया वो देखा कि ये बच्चे बड़े होके कहाँ जाते हैं, फिर से यहीं आते हैं या नहीं। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि यहाँ पे वापस आते हैं, पर काफी कुछ उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी थे कि जब उसने रिकॉर्ड किया ऐसा बताया तब वो वहां पे तो था ही नहीं। तो ये सब डिस्कशन चलता रहता है, पर धीरे 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 पता चला। और उसके बाद आई बैंडिंग, जो स्टील का बैंड था, तो वो एज अ ये धीरे 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 अलग अलग लोगों ने ट्राई किया। मैंने वो नोट किया हुआ था, पर एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं डायरी भूल गया हूँ, तो किसने किया है वो मैं सब आपको शेयर कर दूंगा। वो ऑनलाइन आर्टिकल ही है ऑडुबन सोसाइटी का, ईयर वाइज कि 1800s में क्या हुआ, 1900s में क्या हुआ। मैं वो लिंक ही शेयर कर दूंगा आपको, तो वो डिटेल आप आराम से पढ़ सके कि किसने क्या किया, कौन सा रिसर्चर था। और धीरे धीरे उसके बाद हाँ, तो बैंड भी नहीं था वो, एक्चुअली तो वो धागा था। फिर धीरे धीरे उसमें से इवॉल्व होते होते कोई कोई रिसर्चर्स ने ट्राई किया कि हम ये ट्राई करते हैं तो कुछ अच्छा बनाता है। यस, और साइमल्टेनियसली अभी ये 1800 की बात है, तो ये क्रेडिट गया ऑडुबन सोसाइटी के रिसर्चर को, बट वी नो दैट कि हमारे पास बहुत टाइम पहले भी राजा महाराजा पिजन के पैर में रिंग करते थे। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडियन जो हिस्ट्री माइग्रेशन की है वो बहुत स्कैटर्ड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ऐसा सोर्स है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन है नहीं जो हमें करना चाहिए, बट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि उनके पहले भी हमारे यहाँ ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कबूतर के पैर में रिंग पहनाना इज वेरी कॉमन थिंग। और हर एक 5000 साल पहले की हम राजकुमारी की कहानियां सुनते हैं, उसमें भी वो रिंग वाला कबूतर तो होता ही है, जो मैसेंजर पिजन थे। एंड एक्चुअली इट वाज मैसेंजर पिजन वाज अ स्पीसीज, वो काफी कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बहुत सारे थे वो। उसका इतना शिकार हुआ कि वो वही शायद 1700-1800 के आसपास पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके। तो दिस इज द वे ये धीरे 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 करके हिस्ट्री आगे बढ़ती है माइग्रेशन की, स्टडी कैसे हुई। अभी क्या हुआ कि उसके बाद में, रिंग के बाद में, फिर कोई कोई लोगों ने रडार बेस्ड, जो नेवी का रडार होता है तो रडार बेस्ड था, और रेडियो टेलीमेट्री जो, तो उसका एक दौर आया। तो कोई कोई लोगों ने पहले तो क्या किया कि उसके बीच में नाइट ऑब्जर्वेशन आया। सॉरी मैं ये स्किप कर चुका। एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, शायद नाम नहीं भूल रहा हूं, तो उसके एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जो रात को मून का कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, और मून के आगे से कोई कोई बर्ड्स पास हो रहे थे, फुल मून नाइट थी। तो उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन किया, तो वो काला एक बर्ड जाता है तो आपको सिलूट जो होता है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये स्टॉर्क है, ये फाल्कन है, ये सब पता चल जाता है। तो उन्होंने वो नोट किया। धीरे धीरे पता चला कि वो माइग्रेशन मॉनिटरिंग की एक मेथड हो चुकी, नाइट टाइम माइग्रेशन मॉनिटरिंग। और उसके बेस पे फिर धीरे 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 करके मून के बेस पे जो फुल मून नाइट होती थी, उसमें थ्रू आउट यूएस ये एक पूरा कैंपेन चला, और मल्टीपल स्टेशन पे ये नाइट वॉचिंग, मून वॉचिंग, या हम बोल सकते हैं कि माइग्रेशन वॉच, ये कंसेप्ट आया, और वो बहुत बड़े स्केल पे यूएस में आज भी हो रहा है।
तो वो एक दौर आया। उसके बाद में रेडियो टेलीमेट्री आया कि रडार जो था उसमें एक अननोन बड़ा सा फ्लॉक उड़ रहा था, तो सिक्योरिटी थ्रेट लगा काफी लोगों को। धीरे धीरे वो फाइंड आउट करने पे पता चला ये जो मून वाला ऑब्जर्वेशन था, तो साइमल्टेनियसली दोनों हुआ कि रडार में जब वो बड़ा सा कुछ फ्लॉक वॉक चलता है जो अननोन चीज है बड़ा सी, तो वो जब हमारी सिक्योरिटी के आसपास आता है तो मून के आसपास में कुछ दिखता है क्या, तो तब जाके पता चला कि ये बहुत बड़ा फ्लॉक है। और धीरे 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 फिर पता चला कि रडार का यूज भी हम फ्लॉक मॉनिटरिंग में कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी केम इनटू पिक्चर। फिर ये जो रडार की टेक्नोलॉजी है उसके बाद में रेडियो टेलीमेट्री आई। रेडियो वेव्स तो थे ही हमारे पास तब तक, रेडियो का हम बहुत खूब ही यूज कर रहे थे तब तक। तो कोई कोई टैग्स बनाए छोटे जो रेडियो टेलीमेट्री बेस्ड रेडियो वेव्स पे वर्क कर सकते थे। और एक रिसर्चर थे जिनका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, जिन्होंने एक बर्ड पे टैग किया, रेडियो टैग, और उसके पीछे पीछे उन्होंने अप्रोक्स अमेरिकन एरिया में ही 400 माइल तक उसको फॉलो किया प्लेन में। ये पूरा आर्टिकल में सब डिस्कशन है, डिटेल्स है किसने किया वो मैं आपको वो शेयर करूंगा पक्का। तो उसके बाद उसको पता चला कि अच्छा ये माइग्रेशन का ऐसे भी स्टडी हो सकता है। शायद वो ग्रे लेग गूस के पीछे वो किया था। ग्रे लेग गूस तो शायद मुझे पक्का पता नहीं है, मैं आई चेक। नहीं वो तो अलग है, वो तो अलग है, वो तो अलग, ये तो हिस्टोरिकल है, ये तो इससे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के टाइम था। अभी वो तो साथ में उड़ रहा है, वो फुल एचडी है, वो अब रिसेंट है। ये तो हो सकता है। ये तो बहुत पुराना था। तो ये जो वर्क है उसके बाद में रेडियो टेलीमेट्री आई, रेडियो टैग्स आया, पर रेडियो टैग्स का भी एक लिमिटेशन है, वो छोटे एरिया तक काम करता है। अभी हर एक बर्ड के पीछे पीछे तो प्लेन उड़ा दे कोई जाएगा नहीं। तो उसके बाद में अभी आया धीरे 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 रिंगिंग प्लस रेडियो टेलीमेट्री, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ और वीएचएफ जो टैग्स है, जो टैग तो करना ही पड़ता है, टैग तो तो उसका एक डिस्टेंस जो है वहीं पे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका रेंज निकल जाएगा, लिमिटेड रेंज। हाँ, या फिर रिसीवर्स कोई कोई डिस्टेंस पे होने चाहिए, जैसे हमारा सेल फोन टावर है। वेरी कंफर्टेबल। हाँ, और उसके बाद में धीरे 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 ये लिमिटेशंस आने लगी। तो तब तक ये पता था कि ये माइग्रेट कहाँ करते हैं, पर इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं या नहीं, वो सब सवाल अभी भी मिस्ट्री थे हमारे लिए। અત્યારથી મેલું દાટ થઈ ગયું तो એક 5 મિનિટમાં वो फिर पता लगाने के लिए धीरे 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 મને થતું टेक्नोलॉजी હતું કે आई આ તો और સાવ ખલાસ થઈ इसमें જશે सैटेलाइट 10 टेलीमेट्री દિવસ का જોજે ખલાસ जो पार्ट आया કલર वो જ ના यहाँ से લેવાય આ शुरू તો हुआ। જો કાળું तो ગુડ્ડું થઈ ગયું उसमें दो सिस्टम्स थे, તારા સિવાય एक કોઈ બેસે जीपीएस જ बेस આવી था તો जो યુ कि શુડ નો કે તારો પગ આવો ગંદો अमेरिकन ના हो जाए अदरवाइज आर्मी और जो स्पेसिफिक आर्मी तो नहीं बोल सकता, पर उसकी जो जो फोर्सेस દેખાય थी, છે બહુ જ ખરાબ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, आर्मी હવે नेवल પાણીથી दोनों, ઘસીશ ને उसके लिए तो जीपीएस का આની एक ઉપરનો જે છે इन्वेंशन ને हुआ। એ जो જતું जीपीएस રહેશે टेक्नोलॉजी है वो उनके लिए आई, सबसे पहले सिविलाइज पब्लिक के लिए नहीं આ थी। દર तो धीरे 6 धीरे वो મહિने यूज करने બદલવા पे પડે पता चला कि ये हम सैटेलाइट टेलीमेट्री में जोरजे यूज कर सकते हैं। तो जो वीएचएफ का लिमिटेशन है वो हम इससे आगे क्रॉस कर सकते हैं। तो वहां पे जीपीएस और आर्गोस दो सिस्टम्स आए। हाँ, ये जीपीएस टैग है। तो अभी अभी ये है, हाँ, હવે દેખાય ને પણ तो देखो, सालो ये बहुत जो खराब થઈ जीपीएस ગયું है છે वो ग्लोबल जियो पोजिशनिंग सिस्टम है जो, तो उसके बेस पे एक स्पेसिफिक टैग आया जो कि जीपीएस बेस वर्क करता था। तो उसमें क्या था कि उसमें एक सिस्टम अलग से काम कर रही थी जो नौसेना और आर्मी और उसके लिए डेडिकेटेड थी, सैटेलाइट सिस्टम। दूसरा था आर्गोस, दोनों अमेरिकन है। आर्गोस जो है वो एक वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए सिस्टम, पूरे सैटेलाइट की सिस्टम रखी हुई थी, जो मटेरियोलॉजिकल डेटा, जो वेदर का डेटा कलेक्ट कर रहा था। और बाद में उसको भी यूज करते करते फिर अभी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो आर्गोस बेस्ड चल रही है। तो जो अभी जो सैटेलाइट टेक्स है लॉन्ग ड्यूरेशन जो हो रहे हैं वो काफी सारे लोग आर्गोस का यूज कर रहे हैं। तो आर्गोस को हम कैसे समझ सकते हैं, हमारा वीडियोकॉन D2H है, मानो कि वीडियोकॉन है या कोई भी घर पे टीवी डिश है,
तो वो ऐसी डिश है जो कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो आर्गोस को ऐसे मान लीजिए कि वो कनेक्शन प्रोवाइडर है, वो डेटा आपको आप जैसे ही रिचार्ज करवा रहे हैं वो आपको चैनल्स दे रहा है। बस ऐसे ही आपने किसी एनिमल पे टैग लगाया जो कि सैटेलाइट टैग है, और उसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं। जो सैटेलाइट टैग है वो ऐसा भी आता है, उसमें जीपीएस बेस और जीएसएम बेस भी आता है कि जो हमारा नेटवर्क फ्रीक्वेंसी में ही यूज करते हैं, और जो बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे नेटवर्क के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो वो सस्ता आता है कंपैरेटिवली सैटेलाइट टैग से। तो वो भी है। और एक सिर्फ सैटेलाइट वाला टैग है कि जो सिर्फ सैटेलाइट डेटा आपको देता है, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग किया हुआ डेटा देता है, जिसमें यहाँ हमारा सेलफोन का टावर का यूज होता नहीं। तो ऐसे मल्टीपल टैग्स आते हैं। अलग अलग कंट्रीज उसको अलग अलग तरीके से डेटा रिट्राइव करती है। इज इट ऑल कनेक्टेड? इट्स सिंगल कनेक्टेड। अगर आपका जीपीएस जीएसएम बेस है जिसमें मोबाइल नेटवर्क आता है, ये जो है ना, ये जो अभी दिखा है वो जीपीएस जीएसएम टैग है, और उसमें एक सोलर पैनल भी लगा है जो चार्जिंग के लिए लगा है। तो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी की वजह से उसका बैटरी लंबा चले, उसकी वजह से ये सोलर पैनल है। पर ये जो है मोस्टली जीपीएस जीएसएम टैग है, जो सस्ता होता है कंपैरेटिवली, और लोकल आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके नेटवर्क में जब आता है तब एक साथ सब डेटा दे देता है। तो उसमें एक जियो लोकेटर होता है, सब डेटा रिकॉर्ड करता है, कहाँ घुमा है कहाँ नहीं, सब लोकेशंस एक टाइम पे रिकॉर्ड कर लेता है। और वो आपको देता कब है, अगर ये जीपीएस जीएसएम टैग है तो वो जब नेटवर्क में आएगा तभी वो आपको एसएमएस थ्रू अपडेट करेगा। Suppose this is tagged by BNHS in India. So as soon as this bird hits India, enters within mobile network of India, तो वो पूरे साल का डेटा वो दे देगा, 2 महीने का, 5 साल का, ऐसा। Keep on recording the whole route and journey, whatever it is. Yeah. But as soon as it comes into our tracking area, नेटवर्क एरिया, इट्स अ कनेक्शन एरिया। मोबाइल नेटवर्क। टैगिंग एरिया का कोई इसमें रोल नहीं रहता। so even like it's not that कि हमने टैग किया है तो ही हमें मिलेगा। Just asking because it should be clear to everyone. इसमें ऐसा होता है कि जो सब्सक्रिप्शन लेता है, मैंने इसलिए तो आपको एग्जांपल दिया कि D2H, कि आपका जो चैनल है उसका आपने प्राइस दिया है तो वो आप ही देख सकते हैं आपके टीवी में ही, आपका पड़ोसी वो नहीं देख सकता है, उसको अलग से लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये जब टैग्स हम belonging to any pet. If they are tracking a certain bird, so they have to register with someone. this manufacturer of this tag और सर्विस प्रोवाइडर, अगर जो आर्गोस बेस है सिर्फ सैटेलाइट बेस। I'll explain the more technical, more layman terms technically. Okay, the tag that you see here on the neck of this particular grey goose, the tag is very cheap. Okay? There is no subscription for the tag. The subscription is for the data. डेटा Which is your SIM card. Subscription is required. The tag is one time. आपने एक बार खरीद लिया, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। That is it. एक बार खरीद लिया, Single purchase. वो चलेगा। जैसे कि आपने एक डिश ली तो वो चलेगी। उसका रिचार्ज चलेगा। लेकिन आपके अंदर जो कार्ड डाला हुआ है ना, वो कार्ड आपको रिचार्ज करना है। अगर आप वो कार्ड लेकर अमेरिका चलेगा या न्यूजीलैंड चलेगा तो नहीं चलेगा। It will not work. Same. Unless you have a specific network there. और like your SIM card, mobile SIM card. अगर आपका SIM card BSNL का है या Airtel का है तो it will work with Airtel and BSNL radios only. अगर आप किसी गांव में चले गए, वहाँ जियो चल रहा है, Airtel या BSNL नहीं है तो वो नहीं चलेगा। Similarly, if you take the SIM card to New Zealand or Australia or US or UK, जहाँ पे suppose कि BSNL का tie up नहीं है किसी के साथ, तो it will not give you any connectivity. अगर international roaming है तो वो बताएगा आपको। But generally, to keep the cost down, they do not, these organizations don't get into international level data collection. So, SIM card डाल दिया, they will recharge you for a year with the hope that the bird comes back. It doesn't die on the way. When it comes back to Indian network area, the data gets all sucked up into the server. It's like pushed onto the server. Okay. जैसे अगर आप to tell you in a very simple manner, आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ओके, आपका पासबुक आपके घर पर है, जिसमें आप लेकर जाओगे पासबुक को एंट्री करके 20 पेज एंट्री वहां देगा 2 साल की, क्योंकि 2 साल तक आपने उनके साथ इंटर नहीं करा। इट इज द सेम थिंग।
एग्जैक्टली द सेम, जिसमें जहाँ जाएगा ना वो अंदर मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर होता रहेगा, यहाँ गया इतने बजे यहाँ पे था, इतने बजे यहाँ पे था, इतने बजे यहाँ गैस नेटवर्क कवरेज तो पूरा डेटा सर्वर पे दे देगा. एंड नाउ हाउ टू रिट्रीव दिस डेटा, इट इज अप टू दैट इंस्टीट्यूट वेदर दे आर पब्लिशिंग इट ऑनलाइन और नॉट फॉर पब्लिक यूज. There are many institutes that are publishing data online for public use. Many institutes don't do that. They keep it to themselves. Like the one that you just showed, the European honey buzzer. They published that data because it was interesting, something people would want to go and study. So they published that data, and that's how the mapping was done. And people can draw their own conclusions from that. A lot of this data is used for scientific purpose. A lot of research fellows study this data and write their papers accordingly. Okay, means I see data, I'll interpret it in a very different way. He sees it, he might interpret it in a very different way. So that data gets published at some sites. Some papers, If it is not, yes, exactly. If it is some not articles. available in public, if you are a research fellow, तो आप अपने इंस्टीट्यूट को बोल सकते हो कि भाई प्लीज गेट इन टच विद BNHS और some Mongolian country institute, and you can ask them कि भाई मुझे इनका डेटा चाहिए, then you please ask them to provide that data. They will provide you the data set. Then it is up to you to run your analysis on that. ठीक. तो लेकिन जब वो माइग्रेट करते हैं, जैसे आपने बताया GSM वाला जो अपना सिम डाला हुआ है जहाँ से टैगिंग किया, ठीक है, जहाँ पे वो माइग्रेट करता है वहाँ पे तो अपना नेटवर्क ही नहीं. हाँ, तो वहाँ पे वो जियो लोकेटर होता है, वो डेटा स्टोर करता रहता है. जीपीएस लोकेशन सेव होता रहता है, वो भेज नहीं सकता है, नेटवर्क नहीं है इसका. You are taking photos. You took 100 photos at Ranthambore, then you go somewhere else. You end up in Bharatpur. Photos there. You end up in Talchappa, and then when you come back after 3 months, आपने डेटा डाला आपके लैपटॉप पे और वाईफाई कनेक्ट किया क्या, तो this data is, you know, it's like very small. ठीक है. It's not large. वो बहुत like इस टेक्स्ट डेटा होता है, कितना होगा उसका, कोई साइज इतना बड़ा होता नहीं. तो ये जो है एक्चुअली ये जो सवाल जवाब है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में स्किप कर चुका. वो फिर से मैं बोलता हूँ कि बिफोर this kind of tags we have to understand how to put tags. Tagging, जो tagging method है वो हर एक में अलग अलग होती है. तो हर एक बर्ड की स्पीसीज वाइज भी अलग अलग होती है. किसी को गले में है, किसी को पैर में है, किसी को पीठ के ऊपर होता है. तो ये जो है मैंने एक रिसर्च पेपर निकाला हुआ है आपको देखने के लिए कि ये जो डेटा वेटा होता है तो उसके ऊपर से कैसा लिखता है. तो एक जर्नल है एनिमल बायोटेलीमेट्री करके, उसमें से एक पेपर है. जो किसने लिखा है वो नाम लिखा होता है कि दिस आर द रिसर्चर्स, उन्होंने ये काम किया हुआ है. उन्होंने एक्चुअली जो इफेक्ट क्या होता है उसके ऊपर, कोई एडवर्स इफेक्ट होता है या नहीं, वो उसके ऊपर स्टडी किया हुआ है. और माइग्रेटरी वाटरफाउल पे किया हुआ है. तो वाटरफाउल पे गले पे मोस्टली लोग करते हैं. देखिए आप, ये मोस्टली इसका बेस गले से लिया हुआ और पीठ पे वो करते हैं. एक मिनट, वरना फिर मैं आगे का स्किप कर दूंगा. नहीं वो आपको फिर कंफ्यूजन होगा, मैं वो पार्ट चला जाएगा ना तो आपको डाइवर्ट हो जाता है. तो अभी जो है अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के लिए बने होते हैं. उसका अलग अलग हैबिटाट, क्या एरिया में बर्ड है, वो टैग देखेंगे कहाँ से, दिखेगा या नहीं, बर्ड को परेशानी होगी या नहीं, और वो एनवायरनमेंट में वो टैग बचेगा या नहीं, वो सब फैक्टर्स देख के फिर वो टैग फिक्स होता है. जरूरी नहीं कि हर एक जगह पे आपको सैटेलाइट टेलीमेट्री ही यूज करनी है. काफी सारी जगह पे रिंग इज अ बेस्ट वे, जहाँ पे बहुत सारे बर्डर्स है, गुजरात की जगह जहाँ पे बहुत सारे एक्टिव बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफर्स है जो कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहते हैं. जैसे कि एक फेसबुक जो टैग बर्ड्स वाला जो ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको इवन सिंपल रिंगिंग भी इतना ही अच्छा रिजल्ट देगी. तो एक रिंग 15 रुपए की आती है और एक जो टैग है सैटेलाइट टैग वो 3.5 लाख का आता है. और उसका डेटा एक साल का 1500 से 3000 यूरो का होता है. रिंग में डेटा नहीं होता, इट्स जस्ट मेटल रिंग.
इट्स नंबर, जैसे आपने रिंग पहना है, जो हाथ में ये पहना हुआ है, सेम। Okay, so this is like this is वो data मेरे पास रिंग था, मैं लाना भूल गया क्योंकि बीएनएचएस को आप लिख सकते हैं। पेट बर्ड के लिए अच्छा, मेरे पेट पास फाइट, तो वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी। या सो इट इज not a digital report. इट इज नॉट डिजिटल। This is a physical Yes. report कि देख रहा है। तो ये मतलब हाँ। यहाँ पे आया। और ये एक वाइल्ड लाइफ स्टडी की मेथड है जो बर्ड्स में सिर्फ नहीं यूज होती है, मार्क रिकैप्चर मेथड बोला जाता है इसको। तो जो भी एक चीज है उसको किसी चीज से मार्क किया आपने, फिर वो रिकैप्चर मतलब रिसाइट होता है, आपको मार्किंग दिखता है और आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो उसमें दो टाइप की है, एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस है और काफी चीज में आपको वो रिट्राइव भी करना होता है। तो मैं अभी बोलूंगा, इसलिए आपको नहीं बोलता हूँ किस में, क्योंकि एक है रिंग, जो रिंग है मेटल की भी होती है, जो हमारे यहाँ बीएनएचएस इश्यू करता है, यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट इश्यू करती है। हर एक रिंग का एक यूनिक नंबर होता है, आईडी होता है, एक नीचे बीएनएचएस का डिटेल लिखा होता है, वो एनग्रेव किया, जो एल्यूमिनियम स्टील जो है उसमें वो लिखा हुआ होता है पूरा, जिससे जो जिस किसी को भी मिलता है तो वो पता चले कि कहाँ से मिला है, कहाँ से टैग किया है, डेट क्या है, वो सब उसमें जनरली होता है। पर उसकी एक लिमिटेशन है कि वो वापस मिलेगा तो पता चलेगा, या किसी को दिखेगा तो पता चलेगा, तो पता चलेगा। हाँ, वो करता हूँ। ओके, तो ये वो बात हुई रिंग की। रिंग में भी मॉडिफाइड अभी बहुत सारे नए वर्जन हैं। प्लास्टिक रिंग यूज करते हैं जो कि लाइट वेट होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कंपेयर टू स्टील या एल्यूमिनियम कम होती है, बट इनफ होती है, अच्छी होती है। और अभी जो न्यू प्लास्टिक रिंग्स हैं उसकी लाइफ लॉन्ग बहुत लाइफ टाइम भी उसका बहुत अच्छा होता है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें कलर्स होता है। इन मेटल रिंग्स यू कैन नॉट, बट इन प्लास्टिक उसमें कलर कोडिंग हो सकता है। तो आपको पता चलता है कि मेल्स जो आपने जो जितने को रिंग लगाई है तो उसमें ब्लू कलर रखा है, तो आप दूर से ही ब्लू देखेंगे तो पता चलेगा ये मेल है या फीमेल। फिर से आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा, उसको क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा। तो ये है, उसको ये कैप्चर करना पड़ता है। ये रिंगिंग है, उसमें वेडर्स जो होते हैं उसमें रिंग भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है, क्योंकि वो मड के आसपास रहता है तो छोटी रिंग नहीं दिखेगी, तो उसमें कुछ बड़ा चाहिए। तो उसमें फ्लैग्स होता है जो कि प्लास्टिक का जो हमारा होता है ना, हाँ, जैसे कि ये देखिए, ये नंबर वाली रिंग है, कलर कोडेड प्लास्टिक रिंग है, ये क्रेन में किया हुआ है, ठीक है। गुजरात में भी हाँ, कलर का भी मतलब होता है, कंट्री स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे कि जापान का कोई कोई बोर्ड में ब्लू कलर है।